गुजरात में वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत साबरमती बोटाद और डसा जेतलसर लाइन के ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम चल रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां होने के आरोप लगे हैं। ZRUCC के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर श्री उमेश मकवाना के द्वारा की गई जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। CBI, ED तथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की संयुक्त जांच की मांग भी की गई है। आइए इस मामले में श्री उमेश मकवाना से बात करते हैं। જે RVNL દ્વારા જે ટેન્ડરની ડિઝાઇન જે કરવામાં આવી હોય છે, બ્રિજ, માઇનોર બ્રિજ, ત્યાર પછી માટીકામ, રેલવે ટ્રેક વગેરેની એને ટેન્ડરમાં જોતા અને સ્થળ ઉપર તપાસ કરતા બેમાં ઘણો ફેર આવે છે અને કામની ગુણવત્તા ખૂબ જ નબળી હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે। अलग अलग मौसम के दौरान ZRUCC सदस्य श्री उमेश मकवाना तथा पत्रकारों के द्वारा साइट विजिट की गई। इस दौरान ब्लैंकेट वर्क, अर्थवर्क की क्वालिटी, मेजर व माइनर ब्रिजेस जैसे पहलुओं को जांचा परखा गया। कमजोर स्ट्रक्चर तथा स्ट्रक्चर में दरारें आम बात थी। ढंग के ब्रिज न बनने के कारण वाटर लॉगिंग होता है, जिससे किसानों के खेतों में पानी चला जाता है और फसलें बर्बाद होती रहती है। बारिश रुक जाने के बाद भी कई हफ्तों तक खेतों में पानी जमा रहता है। यह किसान अपनी शिकायतें करके अब थक चुके हैं। હવે એમાં એવું છે કે રેલવેનું જે કામ ચાલુ છે ને અત્યારે એ રેલવેના સાહેબોને મેં વારંવાર રજૂઆત કરી, અંદાજે લગભગ 25 વખત રજૂઆત કરી સાહેબને કે ભાઈ અહીંથી અમારું પાણી જાય એવો નિકાલ કરી દો, અહીંથી અમને હાલવાનો રસ્તો કરી દો, તો પણ સાહેબો કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી। અને સાહેબો બધા કે અમે તમે રેલવે પૂરી થાય એટલે કરી દઈશું, પણ સાહેબ એમને કાંઈ રસ્તાનો પાણીનો નિકાલ કર્યો નહીં। અંડરબ્રિજ જે બનાવ્યા છે, હા, એ અંડરબ્રિજની પરિસ્થિતિ શું છે? અંડરબ્રિજ એવો બનાવ્યો સાહેબ કે નાળું આ જે નાળું રહ્યું એવું નાળું એમાં મૂક્યું ખાલી સાહેબ, પણ નાળાના હિસાબે પાણી અંદર જતું રહે ખરું, પણ નાળાની આડી RCCની દિવાલ કરી નાખી। હાલવાનું જે અંડરબ્રિજ બનાવ્યો ને એની RCCની દિવાલ કરી નાખી, શું સમસ્યા ઊભી થાય છે? એટલે પછી પાણી તો જવાનું નથી આગળ રેલવે વટીને, એટલે બધાના ખેડૂતોના ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયું અને બધાની લગભગ આશરે 80 થી 100 એકર જમીનમાં બધો અત્યારે પાક બળીને ખાક થઈ ગયો, એટલે ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા। फुल फ्लेज ब्रिज का निर्माण करने के बजाय एक छोटे बॉक्स जैसा ब्रिज बना देने के कारण स्थानीय किसानों को कई सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। इनकी मांग है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने वाली RVNL कंपनी की ओर से इनको मुआवजा मिलना चाहिए। પાણી આ રેલવેનું પાણી નાળું આમ મૂકવાને બદલે આ બધું મૂકી દીધું, બરાબર। એની હિસાબે અમારું તોડી નાખ્યું બે જગ્યાએ। પછી ચાલુ વરસાદ અમારા ધૂળના ઓલા નાખવા પડ્યા, કોથળીઓ ભરી ભરી। देखने की बात है कि रेल विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा इंस्पेक्शन में भी यह क्षतियां देखने में नहीं आई है, या तो इसे अनदेखा किया गया है। આપણે તગડીની આગળ જે રેલવે ક્રોસિંગ છે ત્યાં આપણે ઊભા છીએ અને એમાં આપણને આપના પ્રશ્નને લઈને આમાં કાંઈ સુધારો થયેલો છે કે નથી એ છે જણાવશો આપને? હાલ અત્યારે આપણે જે બોટાદથી અમદાવાદ એટલે કે સાબરમતી લાઇનનું જે બ્રોડગેજ લાઇનનું કાર્ય જે પ્રગતિશીલમાં છે RVNL દ્વારા, એમાં અગાઉ પણ મારી વિઝિટ થયેલી અને ઘણા બધા સૂચનો મેં કરેલા। એમાંના કોઈપણ સૂચનનું હજી સુધી પાલન કરવામાં આવ્યું નથી। જેમ કે મેં સૂચનમાં કીધેલું કે ભાઈ જે માટીના આ જે ટ્રેક બનાવવામાં આવ્યો છે એ માટી એપ્રુવલ નથી, એની જગ્યાએ ક્ષારયુક્ત માટી વાપરી છે। એના હિસાબે આપ જોઈ શકો છો કે ઠેર ઠેર માટી ધોવાણ થઈ ગયેલી છે। ધોવાણના કારણે આખો ટ્રેક જે જોઈ શકો છો કે આપ મેજર ટેપ દ્વારા માપીએ કે આખો ટ્રેક જે છે પટરી જે બિછાવવામાં આવી રહી છે એ ખાલી 20 ફૂટનો આખો ટ્રેક જે પટરી બિછાવવામાં આવી રહી છે। એટલે કે હજી મોન્સૂનમાં 1 મહિનાની વાર છે। તો આપ જોઈ શકો છો આજે આપણે જે 30 તારીખ થઈ, 30/5 એટલે કે હવે મહિના પછી પાછું ચોમાસું આવશે, તો જો અત્યારે ત્યાં આ ટ્રેકની આવી હાલત થઈ ગઈ હોય અને તેમ છતાંય તે કોઈપણ પ્રકારનું સુધારા કર્યા વગર RVNL દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનું સૂચનનું પાલન કર્યા વગર હજી પટરી આવી રીતના બિછાવવામાં આવે છે, તો આવનારા સમયમાં ફરીથી આ ટ્રેક ધોવાઈ જશે। જ્યાં સુધી આ ટ્રેકની માટી ફરીથી આખી હટાવી નવેસરથી એપ્રુવલ માટીની ટ્રેક ન બનાવવામાં આવે ત્યાં સુધી આ પ્રશ્નનો હલ નીકળશે નહીં।
અને ખૂબ જ આવનારા સમયમાં લોકોનું જાનહાનિનું ટૂંકમાં નુકસાન રહે એવું લાગી રહ્યું છે. वेस्टर्न रेलवे के तहत दसा जेतलसर लाइन का ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम चल रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां होने के आरोप लगे हैं. वर्ष 2014 से प्रारंभ हुए इस कार्य में ट्रैक लगाने के लिए मिट्टी काम ढंग से नहीं किया गया है, जिसके कारण मिट्टी खिसकने से ट्रैक बैठ जाने की पूरी संभावना है. मिट्टी इस्तेमाल की गई है वह अप्रूव्ड क्वालिटी की नहीं है. क्षार वाली मिट्टी का उपयोग किया गया है जो जल्दी ही बैठ जाती है. जो काम पूरा हुआ है उसमें इस्तेमाल मिट्टी की रॉयल्टी का भुगतान भी सरकार को नहीं हुआ है, जो आंकड़ा 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. बोटाद से साबरमती लैंड का जो लैंड कन्वर्जेशन का काम शुरू है उसमें मैंने विजिट की है. तो उसमें कहीं पे जो मिट्टी है वो कोस्टल मिट्टी से बेड बनाया गया है, એટલે કે जो क्षार युक्त मिट्टी है, जो नॉन अप्रूव्ड मिट्टी है उसमें बेड बनाया जा रहा है. उसमें पर्टिकुलर रोलिंग वाटरिंग जो करना चाहिए वो भी नहीं हो रहा. उसके कारण कई कई जगह पे बेड अभी भी ट्रेन चालू नहीं हुई फिर भी ये जो बेड है वो बैठ गया. कहीं भी जगह से बारिश के कारण वो पूरा टूट गया है. और स्ट्रक्चर की बात हम करें तो कई छोटे मोटे ब्रिज आते हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज है वो भी क्वालिटी विहीन वर्क हुआ है, तो वो भी क्रैक दिखाई पड़ रही है, वो भी बैठ गए हैं. छोटे ब्रिज है जो कन्वर्ट है पाइप कन्वर्ट जैसे पानी का निकालने के लिए जो ब्रिज बनाए गए हैं तो उसमें भी क्षतियाँ कहीं पे दिखाई दे रही. मतलब देखा जाए तो बिल्कुल क्वालिटी विहीन ये वर्क हुआ है. रॉयल्टी की बात करें तो हम अभी आरवीएनएल का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई 26.44 क्यूबिक मीटर का काम हुआ है. मेट्रिक टन से हम गिनती करें कि भाई 59 लाख मेट्रिक टन की आज दिन के मिट्टी का काम हो गया है. तो बोटाद या अहमदाबाद कई जगह पे भी हमने खुद तपास की कि एक भी जगह पे ये रॉयल्टी सरकार को नहीं भरी हुई है ऑनलाइन. आप देखें तो सीधा गवर्नमेंट को 103 करोड़ का नुकसान हो गया है. 103 करोड़ का ये माटी का मतलब देखा जाए सीधे तौर पे कि माटी की रॉयल्टी की चोरी की गई है. डस्सा से जेतलसर ब्रॉडगेज लाइन का कन्वर्जेशन का काम अभी चालू है. तो मेरी विजिट के दरमियान मैंने देखा गया है कि भाई जो मिट्टी का काम हो रहा है वो अप्रूव्ड मिट्टी नहीं है, बड़े बड़े पत्थरों की मिट्टी से एक ब्रेड बनाया जा रहा है. और जो स्ट्रक्चर है वो कई बड़े बड़े छोटे बहुत ब्रिजेस है, वहाँ भी स्ट्रक्चर में भी क्षतियाँ दिखाई दे रही है कि भाई स्ट्रक्चर पे तिराड़ दिखाई दे रही है. कहीं पे स्ट्रक्चर पे मतलब सीमेंट कॉन्क्रीट का कहीं पे कमी दिखाई दे रही है. मतलब बहुत क्षतियाँ दिखाई दे रही है एक काम में. उसमें मिट्टी का काम में मिट्टी 21.86 क्यूबिक मीटर का काम हो चुका है. वो उसकी रॉयल्टी गवर्नमेंट में जमा हुई है या नहीं हुई है? हाँ, और आरवीएनएल का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में है कि भाई जो जितना आज तक के मिट्टी का जो काम हुआ है वो मतलब देखा जाए तो 21.86 क्यूबिक मीटर का काम हो गया है. मतलब इनको जो जिसको आप देखा जाए कि उसको मेट्रिक टन में हम निकाले तो 48 लाख क्यूबिक मतलब मेट्रिक टन मिट्टी का काम हो चुका है. तो ये अमरेली और देखा जाए तो ये राजकोट कोई भी जगह इसका रॉयल्टी का कोई ऑनलाइन रॉयल्टी आज तक दिन में नहीं भरी हुई. इतना स्पष्ट देखा जाता है कि भाई ये जो रॉयल्टी है तो सरकार को कम से कम 85 करोड़ का अभी घाटा हो गया है. 1 रुपये की रॉयल्टी ऑनलाइन कंपनी द्वारा या आरवीएनएल द्वारा नहीं भरी चुकवाई दी गई है.